Dear student, welcome back to the series of lecture on impulse turbine. So in the previous discussion, we learned about the impulse turbine. We define impulse turbines as it is a simple and single rotor, or it may be the multi-rotor, that is also called as compounded turbines, to which the impulse blades were attached. So we learned about the single stage impulse turbine, that is also called as tail level turbine. Thereafter, we realized that in the modern boiler conditions, if we use the single steam stage impulse turbine, then there are many difficulties that arises. So such of the few of them were that we get in a such a high speed that we are far beyond the maximum allowable safety limits because of centrifugal stresses on rotor material. Also, because of high velocity, we had the large friction losses because these friction losses were proportional to the V square, and so that it resulted in reduction in turbine efficiency. Also, since we needed to a speed corresponding to the electric generator, we need to we need a large and bulky reduction gearing so that the high speed would reduce to electric generator. So to overcome these difficulties, the methods that were utilized were called as compounding, or also it is called as staging. So we learned that there were two kind of compounding: velocity compounded turbine and the pressure compounded turbine. So today let's discuss about the velocity compounded impulse turbine. So let me hide the video so that we can concentrate over the content. So let's today discuss about velocity compounded impulse turbine. This turbine was first proposed by C.G. Curtis. Therefore, it is also called as Curtis impulse turbine or Curtis turbine, that has been named after him. So this proposal of velocity compounded turbine, impulse turbine by C.G. Curtis were to solve the problems of the single stage impulse turbine, which is using high pressure and high temperature steam. So this Curtis stage turbine consists of, see on the right side photo, you said concentrate over here. It is consist of one stage of nozzles, just in the similar to the single stage impulse turbine. सिंगल impulse turbine में हमने क्या सीखा था कि एक नोजल और एक मूविंग ब्लेड, इन दोनों को कंबाइन टुगेदर हम लोग सिंगल स्टेज impulse turbine बोलते थे, और दैट इज आल्सो कॉल्ड एज डे लेवल टरबाइन. तो इसमें ये जो कर्टिस स्टेज टरबाइन है, उसमें ये नोजल एक कंसिस्ट ऑफ, ये नोजल की तरह बना हुआ रहता है, और ये नोजल के बाद दो मूविंग ब्लेड, दो रो ऑफ मूविंग ब्लेड होता है. मूविंग ब्लेड का दो रो होता है, और ये दोनों रो मूविंग ब्लेड्स का एक स्टेशनरी ब्लेड के द्वारा सेपरेट आउट होता है. मतलब कर्टिस स्टेज किस तरीके का बना हुआ रहेगा? एक फिक्स्ड नोजल, then moving blade, then stationary blade, then moving blades. So the moving blade, the first moving row of moving blade, इसे स्टीम नोजल का जो एग्जिट होता है वो एंटर करता है मूविंग ब्लेड में, और मूविंग ब्लेड का एग्जिट स्टीम स्टेशनरी ब्लेड में एंटर करता है, और स्टेशनरी ब्लेड का एग्जिट स्टीम सेकेंड रो ऑफ मूविंग ब्लेड में एंटर करता है.
So what is the function of using stationary blade? What is the function of this row of stationary blade? इसका फंक्शन होता है जो पहला रो ऑफ मूविंग ब्लेड से स्टीम निकल रहा है उसे रीडायरेक्ट करना है अगले रो ऑफ मूविंग ब्लेड में। मतलब फर्स्ट रो ऑफ मूविंग ब्लेड का एग्जिट के स्टीम को ये रीडायरेक्ट करके सेकेंड रो ऑफ मूविंग ब्लेड के इनलेट पे पहुंचा देता है या उसको एंट्रेंस की ओर ले जाता है। सो इस स्कीमेटिक डायग्राम से हमने एक स्टेज, ये स्कीमेटिक डायग्राम दिखा हुआ है। उसके नीचे ये है एक प्रेशर वेरिएशन डायग्राम। प्रेशर वेरिएशन किस तरीके से कर्टिस स्टेज में होता है, तो इसमें हम ये सीखेंगे कि ये देखिए जो भी एंथैल्पी ड्रॉप होता है कर्टिस स्टेज में, मतलब नोजल प्लस मूविंग ब्लेड प्लस फिक्स्ड ब्लेड प्लस मूविंग ब्लेड, इसे हम लोग बोलेंगे कर्टिस स्टेज। तो इस कर्टिस स्टेज में जो भी एंथैल्पी ड्रॉप होता है वो सिर्फ नोजल में होता है। जो भी होता है वो एंथैल्पी ड्रॉप सिर्फ नोजल में होता है और यही एंथैल्पी ड्रॉप सिर्फ नोजल में होता है। और when the steam is moving through moving blade, fixed blade as well as second row of moving blade, उस समय कोई एंथैल्पी ड्रॉप नहीं मिलता है। मतलब नोजल में सिर्फ एंथैल्पी ड्रॉप हो रहा है, यानी सिर्फ नोजल में ही प्रेशर ड्रॉप मिलेगा और बाकी मूविंग ब्लेड, स्टेशनरी ब्लेड और अगेन सेकेंड रो ऑफ मूविंग ब्लेड में कोई भी प्रेशर ड्रॉप नहीं मिलेगा। इसमें अगर हम एब्सोल्यूट वेलोसिटी अगर नीचे की हम डायग्राम में देखना चाहें तो ये दिखा रहा है वेरिएशन ऑफ एब्सोल्यूट वेलोसिटी। तो हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि जो भी एब्सोल्यूट वेलोसिटी, मुझे जो भी स्टीम का वेलोसिटी एट द एग्जिट ऑफ नोजल मिलता है वही यूटिलाइज किया जाता है मूविंग ब्लेड दोनों रो में, पहला रो ऑफ मूविंग ब्लेड और दूसरे रो ऑफ मूविंग ब्लेड में। मतलब जो भी स्टीम यहाँ पे मिल गया, यहाँ पर से ये जो VS1 है, ये जो VS1 है यही दोनों मूविंग ब्लेड में भी, फर्स्ट रो ऑफ मूविंग ब्लेड और सेकेंड रो ऑफ मूविंग ब्लेड में इसी का यही वेलोसिटी यूटिलाइज किया जाता है। देयरफॉर अगर हम इसका नीचे का वेलोसिटी देखते हैं तो सबसे पहले इसमें वेलोसिटी क्या हो रहा है, एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ स्टीम इंक्रीज किया किसमें, नोजल में। जैसे ही मूविंग ब्लेड से पास हुआ तो एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ स्टीम घट कर करके सपोज VS1 से कहां आ गया, VS2 आ गया। फिर स्टेशनरी ब्लेड में कोई भी प्रेशर ड्रॉप या प्रेशर चेंज नहीं हुआ और वेलोसिटी भी रिमेन कांस्टेंट रहा। लेकिन सेकेंड रो ऑफ मूविंग ब्लेड में फिर VS3 से VS4 वेलोसिटी घट करके आ गया, ये भी जो घट कर करके आ गया। लेकिन एक चीज यहां ऑब्जर्व करना होगा कि आइडियल केस में ये जो VS2 है वो VS3 के बराबर, VS3 के बराबर होना चाहिए। ये जो स्टेशनरी ब्लेड के इनलेट पे जो एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ स्टीम VS2 है और स्टेशनरी ब्लेड के एग्जिट पे जो एब्सोल्यूट वेलोसिटी VS3 है, दोनों आइडियली सेम होना चाहिए। लेकिन दोनों सेम नहीं होता है, बट कुछ लॉसेस मिलता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही इस ब्लेड से पास होता है तो कुछ ना कुछ यहाँ पे हमें फ्रिक्शनल इफेक्ट मिल जाता है। देयरफॉर ये जो VS3 है वो VS2 से कम हो जाता है, यानी ये जो जितना कम हो रहा है दैट इज कोरिलेटेड बाय अ टर्म दैट इज कॉल्ड एज वेलोसिटी कोएफिशिएंट, वेलोसिटी कोएफिशिएंट। सो इन दिस वे हम लोगों ने क्या देखा कि इसका स्कीमेटिक डायग्राम, प्रेशर वेरिएशन और एब्सोल्यूट वेलोसिटी हम लोग देखते हैं। अब हम इसका अगर वेलोसिटी डायग्राम हमें निकालना, ड्रॉ करना चाहते हैं तो ये लेफ्ट हैंड साइड में जो डायग्राम दिख रहा है वो है वेलोसिटी डायग्राम। ये सिमिलर फैशन में जैसे सिंगल स्टेज इंपल्स टरबाइन में जिस तरीके से हमने वेलोसिटी डायग्राम ड्रॉ किया था, ब्लेड के इनलेट पे, ब्लेड के आउटलेट पे, इनलेट पे 3 वेलोसिटी मिलेगा, एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ स्टीम, ब्लेड वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी एट इनलेट, सिमिलरली आउटलेट पे रिलेटिव वेलोसिटी एट आउटलेट, ब्लेड वेलोसिटी और स्टीम वेलोसिटी, एब्सोल्यूट वेलोसिटी। इन सब का यूज कर करके हमने जो वेलोसिटी ट्रायंगल बनाया था, सिमिलर फैशन हम लोग यहाँ पे भी बनाएंगे। जब उसका यूज करके अगर हम बनाते हैं तो हमें इस तरीके का स्टीम टरबाइन वेलोसिटी ट्रायंगल मिलेगा। सो लेट अस कंसंट्रेट ओवर द
वेलोसिटी, दिस वेलोसिटी ट्रायंगल। तो इसमें हमें क्या हो रहा है, ये हो गया पहला मूविंग ब्लेड। इस मूविंग ब्लेड पे क्या हो रहा है, एब्सोल्यूट वेलोसिटी vs बना रहा है विथ एंगल कौन सा, नोजल एंगल थीटा। अब हम ये क्या कर रहे हैं, वन दे रहे हैं, क्योंकि इनलेट है तो हम इसको वन दे रहे हैं। ये vs1 हो जाएगा तो ये थीटा 1 हो जाएगा। ये वेलोसिटी ऑफ ब्लेड दैट रिमेन्स कांस्टेंट, सो vb यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी से इस ब्लेड पे एंटर करेगा, सो vr1 ये हो जाएगा vr1 व्हिच इज मेकिंग एन एंगल, ब्लेड इनलेट एंगल, ब्लेड एंट्रेंस एंगल phi1। सिमिलरली ये है एक एक्सटेंडेड डायग्राम की तरह बना है। तो यहाँ से हम लोग एंटर किए तो ये दिखेगा vr2 which is making gamma 1, gamma 1 is the blade exit angle, blade exit angle, vr2 is relative velocity at exit, ये vs2, therefore vr2 मिल गया, उसमें हम इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में vv ड्रॉ करेंगे तो हमें vs2 मिल जाएगा, और ये जो एंगल बनाएगा वो होगा डेल्टा 1, दैट मींस द एग्जिट स्टीम एग्जिट एंगल। सो डेल्टा 1 हो गया। मुझे डेल्टा 1 भी हमने ड्रॉ कर दिया। डेल्टा 1 क्या है, स्टीम एग्जिट एंगल या फ्लूइड एग्जिट एंगल, जो उसमें स्टीम केस में स्टीम बोल देंगे। तो ये vs2 डेल्टा 2 मिल गया। इस तरीके से ये पहला स्टेजेस का हमें मिल गया स्टीम वेलोसिटी ट्रायंगल। इन द सिमिलर फैशन अब ये जो स्टीम है ये किसमें हो गया, ये सिर्फ स्टेशनरी ब्लेड के हिसाब से इसका एब्सोल्यूट वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो जा रहा है। अगला क्या इसमें यूज किया गया, फर्स्ट रो ऑफ मूविंग ब्लेड है, उसके बाद रो ऑफ स्टेशनरी ब्लेड हो गया। तो ये जो एग्जिट स्टीम है मूविंग ब्लेड का, वो इस स्टेशनरी ब्लेड के द्वारा गाइडेड हो जाता है, और ये किसके डायरेक्शन में एंट्री करना शुरू कर देगा, अगेन सेकेंड रो ऑफ मूविंग ब्लेड में। तो ये स्टेशनरी ब्लेड ये सिर्फ जो एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ स्टीम है उसका सिर्फ डायरेक्शन चेंज कर दे रहा है। क्या कर रहा है, डायरेक्शन चेंज कर दे रहा है। यानी ये जो स्टीम वेलोसिटी इस तरह से आ रहा था अब चेंज होकर करके इस डायरेक्शन में vs3 हो गया। दैट मींस ये इक्विवेलेंट टू क्या हो गया, ये जो vs3 आ रहा है हम ये एज्यूम कर सकते हैं ये एक नोजल की तरह, जो सिंगल स्टेज इंपल्स टरबाइन था उसी तरीके से आ रहा है vs3, जो कि एक एंगल कितना बनाएगा, ये थीटा 3। तो इसका स्टेशनरी का सिर्फ स्टेशनरी यहाँ पे जो ब्लेड हुआ वो एक नोजल की तरह बिहेव कर रहा है, लेकिन इसका स्टीम का वेलोसिटी नहीं इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा है, बट ये इसको सिर्फ गाइड कर रहा है, डायरेक्ट कर रहा है सेकेंड रो ऑफ मूविंग ब्लेड की तरफ। तो अब सिमिलर फैशन में हमें vs3 मिल गया, अगेन ये एंगल हो जाएगा थीटा 3, हमें vb है इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या मिल जाएगा मुझे, vr3, जो कि ब्लेड एंट्रेंस एंगल मिल जाएगा। सिमिलरली ये मूविंग ब्लेड का एग्जिट हो जाएगा, इस पे हमारा vr4 मिल गया एट एंगल गामा 2, इसमें वेलोसिटी ऑफ ब्लेड मिल गया, देयरफॉर vs4 मिल गया, इसके हमारा ये एंगल डेल्टा 2 होगा, स्टीम एग्जिट एंगल। सो इन दिस वे, इन द सिमिलर फैशन, ये क्या हो गया, सेकेंड स्टेज का वेलोसिटी ट्रायंगल, ये हो गया फर्स्ट स्टेज का वेलोसिटी ट्रायंगल। तो ये बोथ रिमेन सेम। अब हमारा क्या हो रहा है, सिमिलर फैशन में हम लोगों ने बनाए हैं। हमने सिर्फ क्या चेंज किया है कि नोमेनक्लेचर, ये vs1 है, ये हो गया vs2, ये vr1, तो ये vr2। सेकेंड स्टेज में क्या हो गया, 3 और 4 हमने कर दिया एंगल। सिमिलरली हम उस तरीके से यूज करते हैं। अब हमने क्या माना था कि जब भी मूविंग ब्लेड से मूव पास करेगा या स्टेशनरी प्लेट से पास करेगा या अगेन सेकेंड रो ऑफ मूविंग ब्लेड से पास करेगा, उस समय कोई एंथैल्पी ड्रॉप नहीं होगा, दैट मींस कोई प्रेशर ड्रॉप नहीं मिलेगा। लेकिन हमें, और हम ये भी एक देखते थे कि एक स्टेशनरी ब्लेड के पास करने के थ्रू कोई वेलोसिटी में ड्रॉप चेंजेस नहीं आएगा, लेकिन चूंकि अगर ये फ्रिक्शन हम सरफेस मान लेते हैं, ब्लेड में स्मूथ नहीं होकर के फ्रिक्शनल इफेक्ट भी हम कंसीडर करेंगे, तो उस समय फ्रिक्शनल इफेक्ट के कारण वेलोसिटी ऑफ स्टेशनरी ब्लेड के पहले का जो एब्सोल्यूट वेलोसिटी है, एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ स्टीम, जब स्टेशनरी ब्लेड से बाहर आएगा दोनों का वेलोसिटी क्या होगा, चेंज हो जाएगा, यानी vs3 क्या होगा, घट जाएगा। क्यों, ड्यू टू द फ्रिक्शनल इफेक्ट ओवर द स्टेशनरी ब्लेड। और उससे हम लोग कोरिलेट करते हैं एक कोएफिशिएंट दैट इज कॉल्ड एज वेलोसिटी कोएफिशिएंट डिनोटेड बाय kv। ये अलग अलग नोमेनक्लेचर अलग अलग लिटरेचर में यूज किया जाता है, अलग अलग बुक्स में। देयरफॉर ये रेशियो क्या होगा, vs3 अपॉन vs2 इज वेलोसिटी कोएफिशिएंट। तो हमने क्या कर दिया, एक
वेलोसिटी कोएफिशिएंट हमने डिफाइन कर दिया। सिमिलरली हम जानते हैं अगर रिलेटिव वेलोसिटी यहाँ पे फ्रिक्शन रहेगा तो VR1 VR2 क्या होगा, VR1 से कम होगा। अगेन एक रिलेटिव वेलोसिटी यहाँ पे डिफाइन कर दी है, कौन सा, VR2 अपॉन VR1, तो एक वेलोसिटी कोएफिशिएंट डिफाइन हुआ। सिमिलर इन द सेकंड केस, सेकंड रो ऑफ मूविंग ब्लेड में भी रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा, कम हो जाएगा। VR4 विल बी लेस देन VR3, देयरफॉर VR4 अपॉन VR3 हम एक स्टेशनरी एक हम लोग वेलोसिटी कोएफिशिएंट को डिफाइन करेंगे। सो इन दिस तरीके वे हम लोगों ने वेलोसिटी कोएफिशिएंट डिफाइन किए। अब हमने वेलोसिटी ट्रायंगल हमने जैसे ही बना लिया तो अगला टास्क होता है, हम वेलोसिटी ट्रायंगल बनाते क्यों है, टू डिटरमिन द वर्क डन बाय द स्टीम अपॉन ब्लेड। हम वो वेलोसिटी वर्क डन हम निकाल सकते हैं। वी हैव द टू प्रिंसिपल्स, या तो हम लोग मोमेंटम इंपल्स प्रिंसिपल या फिर फर्स्ट लॉ एनालिसिस का यूज करके हम लोग इसका वर्क डन निकाल सकते हैं। So let us discuss the first law. Let us discuss the first law. हम लोग फर्स्ट लॉ का यूज कर, जब हम जैसे ही फर्स्ट लॉ यूज करते हैं तो उसका हम जानते हैं वर्क डन का एक्सप्रेशन इस तरीके से होता है। तो वर्क डन क्या है, यहाँ पे मास फ्लो रेट हो जाएगा, मास फ्लो रेट, वर्क डन इज इक्वल टू हाफ मास फ्लो रेट इनटू एब्सोल्यूट वेलोसिटी का चेंज प्लस रिलेटिव वेलोसिटी का चेंज। ये कब मानते थे, जब हमारे पास सिंगल स्टेज हुआ करता था। यह यहाँ पे क्या होगा, ये माइनस होगा, ये माइनस, प्लस नहीं, ये माइनस होगा, यहाँ पे रॉन्गली इट इज प्रिंटेड, ये माइनस होगा, ये माइनस होगा। यानी अगर ये ब्रैकेट है, ये हमारा कितना होता था एक सिंगल स्टेज के लिए, तो हमने इतना लिख दिया। दूसरा स्टेज के लिए हम कितना लिखेंगे, सिमिलर फैशन में फर्स्ट क्लास से हम लोग इतना लिख सकते हैं, VS3 स्क्वायर माइनस VS4 स्क्वायर प्लस VR4 माइनस VR2 का स्क्वायर। तो हम VR4 स्क्वायर माइनस VR3 स्क्वायर, तो ये हमने वर्क डन का निकाल लिया यूजिंग फर्स्ट लॉ प्रिंसिपल। सिमिलरली अब अगर हम ऑप्टिमम ब्लेड वेलोसिटी इस केसेस में भी डिटरमिन करना चाहते हैं तो इसे इस एक्सप्रेशन, सारा एक्सप्रेशन को वेलोसिटी ऑफ स्टीम VS1 और cos θ1 के रूप में हम लोग कन्वर्ट कर करके जब डिफरेंशिएट करेंगे VV के रूप में, VV के साथ डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें एक एक्सप्रेशन मिलेगा VS1 cos θ1 upon 2n. So this will be the expression for the V optimum, velocity of V optimum. V optimum का हम लोग निकाल सकते हैं। अब क्या n क्या है, n है ये, सपोज यहाँ पे कितना स्टेजेस हमने यूज किया है, 2 स्टेजेस। n क्या है, अगर हमारे पास 2 स्टेजेस रहते यहाँ पे हमें मिलेगा VS1 cos θ1 upon 2 into 2। यहाँ पे हमें कितना मिल जाएगा, ये n के जगह 2 है। n क्या हो सकता है, जिस तरीके से हमने 2 नंबर ऑफ स्टेजेस यूज किया गया, दैट इज कॉल्ड एज कर्टिस स्टेज। एक स्टेज नंबर ये हो गया स्टेज नंबर 1 और ये स्टेज नंबर 2। तो जिस तरीके से हमने स्टेज 1 यूज किया और स्टेज 2 यूज किया, इन द सिमिलर फैशन हमें यहाँ पे स्टेज 3 यूज कर सकते थे, स्टेज 4, स्टेज 5, स्टेज 6, इस तरीके से हम लोग n स्टेज करेंगे। तो इस तरीके से हमारा ये जो वर्क डन है वो भी एक स्टेज में था तो ये एक एक्सप्रेशन मिला था, 2 स्टेज था तो एक एडिशनल ब्रैकेट आ गया था, 3 स्टेज होगा तो एक और ब्रैकेट एडिशनल आ जाएगा, 4 होगा तो इस तरीके से ऐड होते जाएगा। इस तरीके से अगर आप करते जाएंगे तो n नंबर ऑफ वर्क डन में टर्म आ जाएगा, और अगर आप उसका ऑप्टिमम वेलोसिटी निकालेंगे तो इस तरीके का n आएगा। लेट अस सी द व्हाट इज द, अगर कॉरेस्पॉन्डिंग हम वो डिटरमिन करना चाहते हैं वेलोसिटी ट्रायंगल, तो अगर वेलोसिटी ट्रायंगल n का हम यूज करते हैं, से हम लोगों ने यहाँ पे इस तरह के डायग्राम में देखिए, इस पे हमने n डायग्राम हमने लिया है, n स्टेज हमने लिया है। सपोज n स्टेजेस जब हम ले रहे हैं तो उस केसेस में क्या हो रहा है, देखिए इसमें हमने कितना स्टेज लिया है, एक तो यहाँ पे नोजल रहेगा, नोजल और मूविंग ब्लेड, उसके बाद फिक्स ब्लेड, मूविंग ब्लेड, स्टेज नंबर 2, ये कितना हुआ, स्टेज नंबर 3। सिमिलरली इसमें आगे हम यूज कर सकते हैं स्टेज नंबर 4, स्टेज नंबर 5, स्टेज नंबर 6। तो ये जो स्कीमेटिक डायग्राम है दैट इज शोन फॉर 3 स्टेज इंपल्स टरबाइन, 3 स्टेज इंपल्स टरबाइन। सिमिलरली हम इसका वर्क डन भी निकाल सकते हैं, इसका एफिशिएंसी भी निकाल सकते हैं। हाउ वी विल डिटरमिन द एफिशिएंसी,
जस्ट वर्क डन अपॉन हाफ एम वी एस वन स्क्वायर, क्योंकि इनलेट नोजल के एग्जिट पे कितना काइनेटिक एनर्जी है, दैट विल बी द हाफ एम डॉट वी एस वन का स्क्वायर। तो उतना जैसे ही इफिशियंसी का हम डिफाइन करें, वर्क डन अपॉन काइनेटिक एनर्जी एट इनलेट करेंगे तो हमारा इफिशियंसी टर्म मिल जाएगा। तो इस केसेस में जो कि 3 स्टेजेस हमने किया है, इन द सिमिलर फैशन Vs1 हमने ड्रॉ किया, Vb ड्रॉ किया, उससे हमें Vr1 मिल गया, Vr1 मिला तो Vr2 निकल गया, फिर Vs2 हमें Vb के साथ यूज करके Vs2 निकल गया। अगेन ये जो फिक्स्ड ब्लेड है उससे हमने Vs3 का डायरेक्शन चेंज कर दिया, फिर Vb ऐड किए, उससे Vr3 निकल गया। अगेन Vr4 मुझे मिल गया थ्रू द ब्लेड, मूविंग ब्लेड, और Vb का यूज करते हुए मुझे Vs4 निकल गया। अगेन हम फिक्स्ड ब्लेड यूज किए, फिर Vs5 हमें डायरेक्शन चेंज हो गया, बी है उससे यूज करके Vr5 मिल गया, देयरफॉर ये हो जाएगा Vr6, और हमें Vb है तो Vs6 मिल गया। अब इसमें एक ऑब्जर्व करते हुए इसमें एक ऑब्जर्व करेंगे कि जैसे जैसे आपका स्टेजेस लोअर स्टेजेस की ओर बढ़ते जाते हैं, मतलब प्रेशर नीचे लोअर स्टेजेस की ओर जाता है, शुरू होता है, उस केसेस में ये जो ब्लेड है वो फ्लैटर होते जा रहा है। यहाँ का जो थिकनेस है, इसका जो थिकनेस है वो घटते जा रहा है, यहाँ का जो थिकनेस है वो घटते जा रहा है। मतलब जैसे हम इस तरफ जाएंगे तो ब्लेड क्या होते जा रहा है, थिन होते जा रहा है, ब्लेड शार्प होते जा रहा है, जैसे जैसे हमारा स्टेज घटते जाएगा। एक चीज और इसमें हम ऑब्जर्व करते हैं कि सपोज अगर हम वर्क रेशियो की बात करते हैं तो हम लोग एक स्टेज में जो वर्क किए, फिर ये दूसरा स्टेज में हमने वर्क निकाला, और तीसरा स्टेज में हमने वर्क निकाला। तो अगर हम 2 स्टेजेस की बात करते हैं, अगर हम प्रीवियस केसेस में हम बात ले चले, तो अगर हम 2 स्टेजेस की बात करते हैं कर्टिस स्टेज में, तो ये जो 2 स्टेजेस का है हमारे पास वर्क, तो ये हाई प्रेशर स्टेज हो जाएगा, और इसे हम लोग लो प्रेशर स्टेज बोलेंगे। जब 2 स्टेज टरबाइन है, दैट इज कॉल्ड एज कर्टिस टरबाइन, उस केसेस में ये वर्क रेशियो इस स्टेज में और इस स्टेज का वर्क का दोनों का रेशियो लेंगे तो हमें 3:1 मिलेगा। 3:1 मतलब जो हाई प्रेशर स्टेजेज है उसका रेशियो, वर्क रेशियो इसके रिस्पेक्ट में 3 टाइम्स होगा। दैट मींस वर्क रेशियो विल बी 3:5, 3:1। अब यही अगर 3 स्टेजेस है, 3 स्टेजेस है, तो इसका जो वर्क रेशियो मिल जाएगा 5:3:1। मतलब जो हाई प्रेशर रेशियो में 5 का रेशियो होगा, 3 स्टेजेस है तो इसमें 3 का होगा और इसमें 1 का होगा। अब अगर 4 स्टेजेस का रहेगा तो कितना मिलेगा, 7:5:3:1, यानी ये हमारा वर्क रेशियो मिलेगा फ्रॉम द हाईएस्ट टू लोएस्ट प्रेशर स्टेजेज। अब ये एक चीज और हम लोग देखते हैं कि जैसे ही एट द हम जैसे ही ज्यादा लोअर स्टेजेस की ओर बढ़ते हैं तो हमारा अनइकोनॉमिकल हो जाता है। जो स्टेजिंग अगर हम 2 से ज्यादा करते हैं, तीसरा में उतर जाते, 3 स्टेज यूज करना चाहेंगे या 4 स्टेज में, तो जितना मुझे, चूंकि ये क्या हो रहा है, जैसे ही लोअर स्टेज में जाते हैं तो हमारा वर्क रेशियो है बहुत कम मिलना शुरू हो जाता है। देयरफॉर हमारा 2 से ज्यादा स्टेजिंग अगर यूज करते हैं तो वो हमारा अनइकोनॉमिकल हो जाता है, उसे यूज करना इकोनॉमी के हिसाब से सही नहीं है। मतलब क्या है, उसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगा, हमारा वर्क क्या हो रहा है, और कॉस्ट ज्यादा हो रहा है और वर्क आउटपुट रिलेटिवली कम मिल रहा है। देयरफॉर जनरली हम लोग सिर्फ 2 स्टेजेस का यूज करते हैं। यानी कौन सा स्टेज यूज करेंगे, सिर्फ कर्टिस स्टेज तक ही हम लोग यूज करते हैं। और जैसे ही हम कर्टिस स्टेज तक यूज करेंगे, जैसे ही हम कर्टिस स्टेज तक यूज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एट द एग्जिट ऑफ स्टीम जो हमारा पास Vs4 मिलता है वो अभी भी बहुत ज्यादा वेलोसिटी होता है। इसका मतलब ये है कि इस वेलोसिटी के करस्पॉन्डिंग अभी भी हमारे पास लार्ज फ्रिक्शन होगा, हमारे पास लार्ज फ्रिक्शनल लॉसेस होगा। हमारे पास क्या ऑप्शन है कि
जैसे ही ब्लेड स्पीड हमें 2 स्टेजेस के बाद हमें रिक्वायर्ड स्पीड के 2 स्टेजेस के जो स्पीड हमें मिल रहा है स्टीम का, उससे हमें अभी भी लोअर चाहिए, लेकिन 2 स्टेजेस से ज्यादा हम लोग इसको यूज नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग एक अनदर काइंड ऑफ कंपाउंडिंग को हम लोग यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज प्रेशर कंपाउंडेड इंपल्स टरबाइन। मतलब क्या है कि ब्लेड स्पीड ये जो 2 स्टेजेस में मिल रहा है उससे लो करना हमें है। Therefore, the second kind of compounding comes into the picture, and that is called as the pressure compounded impulse turbine. So, today we will stop here, and in the next discussion, we will discuss about the pressure compounded impulse turbine. So, thank you for listening me.